Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 6. The chapter which we are related with is journal. As you know that we have already solved 5 questions और मैंने आपको बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि ये जो दो रूल्स हैं इन रूल्स को अच्छी तरह आपके दिमाग में होना ज़रूरी है. Where we have seen asset and expenses would be written in debit side, increase debit, decrease credit. Liability income credit side, increase credit, decrease debit side. So this was the performer and the rule और हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए हमारा पर्टिकुलर परफॉर्मा वो भी तैयार है. क्वेश्चन में 5 एंट्रीज हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन. अच्छा, आप ये बात समझ में रखिए, कुछ एंट्रीज ना बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसके लिए शायद हम कम टाइम दिया करें. एंड द एंट्रीज विच वी विल सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट एंट्री वुड be deserving little more time. So question number 6, first entry is on October 1. As usual, first we will put the date October 1 और उसके बाद आपको यहाँ पर नरेशन काउंट कर लें. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सो दिस इज एन ओल्ड एंट्री. वी हैव डन इट फॉर सेवरल टाइम्स. स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, चूंकि जगह है तो हम पूरी लिख रहे हैं. As you know that when you will start your business with capital, that means cash will come in. It's your asset increasing. That is why you have written on debit side. Amount with which you will start your business is called capital. Capital is your liability and liability would be written on credit side. इसके साथ ही we will put the amount यहाँ ना इधर opposite side में देखें. Started business with cash 6 lakh, so you will put 6 lakh on debit side. In similar way you will put 6 lakh on credit side. First entry is completed. Now second entry, you will put the date first, October 5. Now see the narration, purchase goods on credit. So clearly mention we have purchased goods from Naveed. Naveed is a name, first thing. And secondly, you understand it, whenever you will see the name, it would be credit transaction. जब भी नाम होगा वो उधार ट्रांजेक्शन होगी. परचेज गुड्स, गुड्स खरीदी, गुड्स आर कमिंग इन, वी विल, and goods are your asset should be written on debit side, so we were supposed to write goods. As usual, we know that we do not write accounting in goods. Instead of goods we write working. क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, परचेज कर रहे हैं तो just write down purchase. Alright. और गुड्स अब आप चाहो तो अब ना लिखा करो, अब आपको आदत पड़ गई हुई है ना कि गुड्स नहीं लिखनी, उसकी जगह वर्किंग लिखनी है. नेक्स्ट, सिंस यू हैव बॉट दीज कमोडिटीज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है तो पैसे तो गए नहीं. उधार खरीदा तो नवीद कौन है, उसको पैसे देने हैं. नवीद इज योर क्रेडिटर. क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी शुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड. अब क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि ये क्रेडिटर था, लाइबिलिटी थी, उसमें इजाफा हुआ, इसलिए आपने नवीद को क्रेडिट किया. एक बात बहुत ध्यान से सुने, ये जो मैं लिखता हूं ना इधर ब्रैकेट के अंदर, ये आपने पेपर में नहीं लिखना. ये गुड्स लिखी हुई हैं, ये ए प्लस लिखा हुआ है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए. सो यू आर नॉट नीडेड टू राइट these sort of things, ये सिर्फ समझने के लिए. So purchase goods from Naveed, how much amount, that is 60,000. Write down 60,000 on debit and 60,000 on credit side. October 5th entry completed. Now October 10 is our next entry. The narration is very clear. Goods returned to Naveed. Very interesting. Goods returned to Naveed. अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आप लोगों को खुद पहचानना था. अब मैं बता रहा हूं आपको. दिस टू, गुड्स रिटर्न टू, इन उर्दू वी से को. गुड्स रिटर्न टू नवीद, नवीद को चीजें वापस की हैं. आप यहां से देखें, नवीद से चीजें आपने पहले परचेज की थी एंड यू डू नॉट लाइक द क्वालिटी और द क्वांटिटी और ड्यू टू एनी प्रॉब्लम यू आर नाउ रिटर्निंग गुड्स टू नवीद. तो हमारे पास से चीजें जा रही हैं, goods are going out. So goods are your asset should be written on debit side, but due to decrease goods are going out, decrease in asset should be written on credit side. तो यहाँ लिखना था goods.
और एज यूजुअल हम अकाउंटिंग में तो गुड्स नहीं लिखते, उसकी जगह वर्किंग लिखते हैं। वाई गुड्स आर टू बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड? बिकॉज वी आर रिटर्निंग, गुड्स आर रिटर्न टू नवीद, नवीद को चीजें वापस कर रहे हैं जिससे हमने खरीदी थी, अब हमें पसंद नहीं आई। So when you will return goods, goods are going out, asset decrease, decrease in asset should be written on credit side. तो यहाँ goods लिखनी थी और goods accounting में नहीं लिखते, instead of goods we write working. What working we are doing? Returning. और अच्छा word क्या है? Since we are returning goods, goods are going out, तो यहाँ लिख दे return out. अब किसके पास ये चीजें गई? नवीद। यहां से ख्याल करें, नवीद was your creditor, उसको पैसे देने थे, but since you have returned goods to Naveed, it means amount is now not payable, क्योंकि चीजें ही वापस कर दी, अब नवीद को पैसे नहीं देने। Liability, it was liability, नवीद was liability, अब चूंकि उसको पैसे नहीं देने, decrease in liability, decrease in liability should be written on debit side, so नवीद liability कम होने की वजह से आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब उसके बाद देखते हैं कितनी चीजें वापस की हैं, दैट इज 2000 रिटर्न ओवर हियर, सो 2000 ऑन डेबिट, 2000 ऑन क्रेडिट साइड। अब आफ्टर अक्टूबर 10, नेक्स्ट एंट्री इज अक्टूबर 15, चलते हैं देखते हैं अक्टूबर 15 नरेशन पहले लिखते हैं, withdraw cash for payment of tuition fee of owner children, so this is very important, withdraw cash, और आगे मैं एक वर्ड लिखने लगा हूं, आपने इसको याद कर लेना, for personal use। ध्यान से सुने, उसने पैसे निकाले ट्यूशन फी पे करने के लिए, किसकी ट्यूशन फी पे करने के लिए? अपने ही बच्चे की, तो ये तो उसका पर्सनल यूज हो गया। कैपिटल was the amount which was provided by the proprietor into the business. Now what he had done, he had drawn that amount, उस अमाउंट को निकाल लिया for his personal use। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए आप कोई चीज निकालते हैं, उसका नाम आज से याद कर लेना है, वो ड्राइंग्स है। बिल्कुल उल्टा, कैपिटल अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर और ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल वो अमाउंट जो कारोबार का मालिक देता है और ड्राइंग वो अमाउंट जो कारोबार का मालिक निकाल के ले जाता है। तो इट मींस निकाल के ले गया तो उसका कैपिटल कम, कैपिटल यहां पर लाइबिलिटी थी, कैपिटल कम मतलब लाइबिलिटी कम। डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी रिटन ऑन डेबिट साइड, सो यू विल राइट डाउन ड्राइंग्स ओवर हियर। दूसरी बात, he had drawn cash, cash is going out, cash is your asset, asset is decreasing, so cash would be written over here। क्योंकि वो पैसे निकाल के लेके गया ना, तो उसकी वजह से आपका एसेट कम हो गया। Decrease in asset should be written on credit side, that is why cash is present on credit side। Amount is 2000, just write down 2000 on credit and debit side। October 15th entry completed। Now last entry is October 20, what it is saying, building purchase, ये देखिए 20th entry, building purchase for cash, वही आपने यहाँ लिख देना है क्योंकि हमारे पास जगह है। building purchased for cash, पैसे के बदले में बिल्डिंग खरीदी, so building is coming in, building is your asset, asset is increasing, increase in asset should be written on debit side, so you will write building on debit side, क्योंकि ये आपका asset था और asset में increase हो गया, इसलिए आपने building को debit। When you will buy your building, cash will be paid, cash will go out, cash is asset, asset is decreasing, so you will write cash on क्रेडिट साइड, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ मच बिल्डिंग प्राइस, दैट इज 240,000, सो 240,000 आप डेबिट साइड पे लिखेंगे और 240 ही आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सो दिस वाज योर लास्ट एंट्री। इस तरह से गाइस यू कैन सी दैट ऑल एंट्रीज आर कंप्लीटेड और विद द रीजंस एंड लॉजिक्स आर रिटन बिहाइंड। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, सॉल्व करके भी आपको कोई मसला हो तो आप बेशक दोबारा पूछते हैं, हालांकि सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। सो यू विल आस्क एनी प्रॉब्लम इफ यू आर फीलिंग थ्रू मैसेजेस, टेक्स्ट और कमेंट्स, आई विल हम्बली बी ट्राइंग माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट्स टाइम टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज।